गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, देन इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने डिटेल में पीछे पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस -q + q separated by a small distance 2a. Now you have to calculate electric field intensity at point P, which lies on the axial line of dipole such that OP is equal to R, where O is the center of electric dipole. O क्या आपका center of electric dipole है. Now electric field intensity at point P due to -q charge at point A is, तो E1 वेक्टर क्या होगी आपकी? Q/4πε0 AP का स्क्वायर एज एट A -q charge at P unit test charge Q0, which are of opposite sign, so they will attract each other, so direction is along PA. Also electric field intensity at point P due to charge plus Q at point B इज इक्वल टू E2 वेक्टर कितना होगा आपका? Q/4πε0, डिस्टेंस या कितनी है आपकी? BP का स्क्वायर एज चार्ज एट B + Q, चार्ज एट P Q0, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, सो दे विल रिपेल ईच अदर, सो डायरेक्शन इज अलोंग BP प्रोड्यूस एज AP is larger than BP. This implies electric field intensity at point B will be greater than electric field intensity at point A and acting in opposite direction. So total electric field intensity is equal to vector sum of two intensities. दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो E वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? E2 लार्जर है, E1 स्मॉलर है, देन E वेक्टर कितना होगा आपका? E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। यहाँ से E वेक्टर कितना आ गया आपका? Q/4πε0 BP का स्क्वायर माइनस Q/4πε0 AP का स्क्वायर। हमें पता है BP कितना है आपका? R-A, AP कितना है? R+A। पुटिंग दीज वैल्यूज, देन E वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? Q/4πε0 R-A का होल स्क्वायर माइनस Q/4πε0 R+A का होल इज इक्वल टू Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच गया? 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। टेकिंग LCM we will obtain Q/4πε0 into 4RA/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ई वेक्टर कितना आ गया आपका? Q into 2A इज डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2PR/4πε0 R² माइनस A² का होल स्क्वायर। दिस इज expression for electric field intensity due to an electric dipole on axial line of electric dipole. If 2a dipole length is very small as compared to length, a distance of point at which electric field intensity has to be calculated, then 2a can be neglected. In that case E कितना हो जाएगा आपका? 2PR/4πε0 R⁴, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से E एक्सियल कितना आ गया आपका? 2P/4πε0 R। आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ी थी वो क्या था? E इज इक्वल टू Q/4πε0 R² मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज 1/R² for point charge and for electric dipole electric field intensity varies 1/R³। तो यहाँ से E एक्सियल कितना आ गया आपका? 2P/4πε0 R³ कब? if 2a is very small as compared to R. Direction of E vector is along because E2 vector is larger than E1 vector and direction of E2 vector is along
BP produce. So net direction of E vector is along BP produce, that is from negative charge to positive charge or along the direction of P vector. Next topic is electric field intensity on equatorial line of electric dipole. Now what is equatorial line? Equatorial line is a line passing through center of dipole and perpendicular to dipole. एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास कर रही है और डाइपोल के परपेंडिकुलर है, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वी विल अज्यूम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस q separated by a small distance 2a with center at O. Now we have to calculate electric field intensity at point P on the equatorial line of electric dipole such that OP is equal to R. Now electric field intensity due to point charge minus Q, इवन क्या हो गया आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट AP का स्क्वायर at A minus Q charge at P plus Q naught charge, so they will attract each other, so direction will be along PA vector। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगी, PA वेक्टर के अलोंग होगी। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOP, AP क्या होगा AO का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, तो यहाँ से AP कितना आ गया आपका रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम E कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू थीटा। देन E1 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। E1 को क्या कर सकते हो, PAB और ABP हमने क्या मान लिया आपकी थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। देन E1 वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। Similarly, we will calculate electric field intensity at point P due to point charge plus Q place at point B, which is given by E2 is equal to Q upon 4 pi epsilon naught BP का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलोंग BP प्रोड्यूस। आल्सो BP कितना होगा आपका रूट का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से E2 कितना आ जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली E2 वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। E2 वेक्टर को क्या कर सकते हो आप, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हो। E2 कितना होगा आपका E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। E2 cos theta parallel to BA and E2 sin theta along PF, as magnitude of E1 is equal to E2 and E1 sin theta and E2 sin theta are just equal in magnitude and opposite in direction, so these two components will cancel out each other. Thus total electric field intensity at point P on equatorial line of electric dipole is equal to सम ऑफ कोसाइन कंपोनेंट। देन E कितना हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा एज मैग्नीट्यूड इज इक्वल दिस इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा या फिर 2 E2 cos थीटा। तो यहाँ से E कितना आ गया आपका, E की जगह क्या रखोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा आपका 2Q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फ्रॉम ट्रायंगल OAP cos थीटा आप निकालोगे, cos थीटा क्या होगा आपका OA अपॉन में AP और ये कितना आ जाएगा A अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से E कितना आ गया आपका 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से E Q इंटू A को क्या लिख सकते हो 2A को P डाइपोल मोमेंट। तो E कितना आ जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। Direction of E parallel from positive to charge to negative charge, or we can say that just opposite of dipole moment. If dipole length is very small as compared to R, then E equatorial कितना हो जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। तो यहाँ से अगर E एक्सियल और E इक्वेटोरियल को आप डिवाइड करोगे तो 2:1 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड